Hello everyone, welcome back. So we are back with another question, that is find the difference, problem number 389 of Leetcode. So question कुछ इस तरीके का है that we have been given two strings, string S and string T. Fine, string T. Now string T is consisting of some values, let's say A, B, C, D. Let's consider this example only. So string T is generated by a random shuffling of string S. Okay, so the string S is randomly shuffled and then string T is generated. So let's say the value of T could be ABDC, or the value of T could have been AB, let's make it CAD, और the value of string could have been anything like तो चार कैरेक्टर का कुछ भी कॉम्बिनेशन मिला के मेरा स्ट्रिंग बनाया जा सकता था D, B, C, A और वॉट एवर. ठीक है. एज पर दिस एग्जाम्पल लेट्स से इसको शफल किया गया एंड द आउटपुट वी गॉट, लेट्स से ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर द स्ट्रिंग विच वी गॉट. नाउ इनमें से what we have done, we have added a character. ठीक है. We have added one more letter at a random position. Let's say our character which we are adding is E. So we added this character at a random position. तो अगर ये है मेरा final string which got generated from random shuffling of the string S. So what we have done, we have added character at a random position. So मेरा जो generated output था could have been DBCAE. मेरा जो random output था this could have been DBEAC और DBCEA, whatever suits, मतलब ये किसी भी random position में जा सकता था. So ये हमारा एग्जाम्पल था, ये अपना प्राइवेट एग्जाम्पल था, इसको हम अपने पास रखते हैं. Let's get to the example which we have been shared. So for example this talking about this one example one. So string इसमें क्या दिया गया है ABCD. ठीक है. T में दिया गया है ABCDE. ये कैसे जनरेट हुआ है, we can definitely think of. So S में ABCD दिया गया था, तो जो स्ट्रिंग जो हम लोग का शफल होने के बाद जनरेट हुआ है इत्तेफाक से मे बी इट गॉट जनरेटेड एज ABCD, and definitely this was also possible, this combination was also possible, this combination was also possible. Now what we have done, we have added another character and then added. As per the question, we could have added it at any random position. As per this example, the system has added it at the end. So ये मेरा देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, but as per the problem given, this was also a valid string T, this was also a valid string T, this was also a valid string T. एंड हमारे कंटेक्स्ट में ये मैटर नहीं करता. ये एग्जाम्पल वन था एंड ये अपना एग्जाम्पल था. अपना एग्जाम्पल यहाँ तक तो सॉर्टेड है. ठीक है. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मल्टीपल तरीका था. एक मतलब वी कुड हैव सॉल्व दिस सॉल्यूशन इन मेनी वेज. सो अप्रोच हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं, ECH. पहला अप्रोच है वी कुड इम्प्लीमेंट सॉल्व दिस बाय इम्प्लीमेंटिंग जोर गेट्स. ठीक है. सेकेंड सॉल्यूशन है we can do this by implementing the traditional array summation difference of arrays characters. ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है. थर्ड में है we would be using the help of ASCII codes, ASCII values specifically. जोर गेट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, चुपचाप से ASCII कोड से काम कर लेंगे. यस वी कैन डू दिस.
एंड चौथा तरीका जो है वी कैन यूज़ हैश मैप्स। हैश मैप्स, तो चारों में से कोई भी अप्रोच ले सकते हैं, सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलने वाला है, आंसर सारा में आ जाएगा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। बट की टेक अवे है कि जब गिवन अ चॉइस कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहे, ऑलवेज यूज जोर गेट्स। ठीक है, even a key takeaway, whenever there is a question something like this, find the difference, like there are in a string specifically, so always use OR gates। कैसे करता है, सॉल्यूशन लंबा होने वाला है, मतलब ओवरऑल वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि हम लोग ये जो चारों अप्रोच को डिस्कस करेंगे। बट इवेंचुअली व्हेन यू गेट द टाइम, पॉज द वीडियो, और आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आराम से बैठिए एंड हैव अ वेरी ब्रीफ ड्राई रन, स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करिए, and then you would be able to appreciate the beauty of the solution one, that is the XOR gates। so कोड को सिंपल रखने वाले हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट द XOR गेट, XOR गेट को इम्प्लीमेंट करने से पहले, एज द नेम सजेस्ट गेट्स, तो मेरे पास दो रूल्स है XOR गेट का। इफ़ सेम इनपुट, एंड ऑल्सो आई एम अज्यूमिंग कि you have a very high level idea of gates, logic gates। So by default you must be knowing that there are gates: AND gate, NAND gate, OR gate, NOR gate, XOR gate। so what we are going to implement over here is we are going to implement one of the gates जो कि XOR gates है, और दो इनपुट मिलता है, दो इनपुट देते हैं, एक आउटपुट मिलता है। और अगर हम लोग सेम इनपुट दे रहे हैं, मतलब आउट ऑफ टू इनपुट बोथ द इनपुट आर सेम, इफ सेम इनपुट आउटपुट इज ज़ीरो। ठीक है, ये है मेरा पहला रूल। एंड सेकेंड रूल है जस्ट द रिवर्स, इफ डिफरेंट इनपुट इनपुट्स आउटपुट इज वन। अगर ये समझ आ गया है तो वी वुड बी एबल टू सॉल्व द XOR गेट्स, और यू मे प्रोनाउंस इट XOR गेट, जैसा मन करे, यू आर फ्री टू डू दैट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो सेम इनपुट दिया गया, आउटपुट ज़ीरो आएगा, डिफरेंट इनपुट दिया गया, आउटपुट वन आएगा। अब अगर ये समझ आ गया है तो थोड़ा सा और चीज़ पता कर लेते हैं, दैट इज़ एस की वैल्यूज़ ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी, और ए बी सी डी। ठीक है, याद करने का स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट नहीं है। आई एम एज्यूमिंग कि आप यहाँ तक आए हैं तो आपको अभी तक बहुत सारा ट्रिक याद हो चुका होगा। एक छोटा सा वैल्यू है, मतलब एक छोटा सा चीज़ है जो याद रखना है। कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर ए स्टार्ट होता है 65 से। अब अगर ए 65 है तो बी जो होगा, एस की वैल्यू ऑफ बी वुड बी 66, वन वन इंक्रीमेंट करते जाना है, 67, डी में 68, एंड ई में 69, डॉट 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 डॉट, इट वुड गो ऑल द वे टू जेड। आई बिलीव इट इज़ 90। एनीवेज आप चेक कर लीजिएगा वन वन इंक्रीमेंट करके, या कहीं से इंटरनेट से चेक कर लीजिएगा, ये है हार्ड कोडेड है। नाउ सिमिलरली फॉर स्मॉल कैरेक्टर इट स्टार्ट्स विथ 97, तो सिमिलरली बी के लिए होने वाला है 98, सिमिलरली सी के लिए होने वाला है 99, डी के लिए होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी 100, ई के लिए होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी 101, जो कि एक्सपेक्टेड है, राइट। इसको ऐसे रखते हैं। अब अगर ये समझ आ गया है, सो 97 98 का बाइनरी इक्विवेलेंट भी निकाल लेते हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, so the speed of video you can definitely listen this in 1.2 or 1.75,
I'm just trying to not to skip any steps, and I'm assuming that by the time you are here, so you are here to have a very detailed discussion, and I would be putting timestamps of the solution directly. So if in any case किसी को अगर by chance too much of information लग रहा है, तो they can definitely jump at the solution directly. But I would suggest कि थोड़ा सा हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं और थोड़ा साथ चलते हैं. So let's binary equivalent, right? Yeah, S P values of A B C D E. You don't definitely need to remember this. ये हम लोग को हमेशा कहीं ना कहीं मिल जाएगा. और अगर नहीं मिलेगा तो ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखने की, ये छोटा सा जो चीज़ है वो याद रखना वुड बी, ये कहीं ना कहीं से मिल जाएगा. और इवन हम लोग से एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि वी कीप इट ऑल मेमोराइज. सो द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ए इज this one, right? Let me copy paste this so I don't have to write it again and again. This, अरे अरे अरे, no, this is fine. अब अच्छा लग रहा है. ठीक है. Now 98 का binary equivalent is going to be this one. Binary equivalent of D is going to be this value. A binary equivalent of E is going to be this value. ठीक है. अब बाई चांस एनीबडी इन डाउट कि ये वैल्यू कहाँ से आया है, सो इफ अनबेट करने से बेटर है. छोटा सा तरीका है. लॉजिक ये है कि लेट्स टॉक अबाउट दिस. 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट. और भी पढ़ता है 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वो जहाँ तक जाना चाहो जा सकते हैं. बट लेट्स से दीज आर डेसिमल वैल्यूज़ और हम लोग को बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है 1 2 3 4. दिस वुड बी सफिशिएंट. तो पहला ज़ीरो, दूसरा वन, फिर ज़ीरो, दूसरा वन, और ऐसे कर करके ये हो जाएगा 1 बिट के लिए. ये हो जाएगा, ये होगा. अरे घसका दिए क्या? हाँ घसका दिए. यहाँ से स्टार्ट होगा. 0 के लिए 0. 16 के लिए एक नया कहानी शुरू होगा, किसी और दिन डिस्कस करेंगे. So similarly this is going to be 0 0, this is going to be 1 1, or copy paste, control V, control V, control V. This is going to be 0 0 0 0, this is going to be 1 1 1 1, and just copy paste. फिर घसका दिए 4 0 0 0 0 1 1 1 1, 1 2 3 4 5. एक्स्ट्रा लग रहा है, ये क्यों है? Now this is fine. Okay, it is supposed to be 4 0 4 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8. कुछ गलती की है, पता नहीं क्या कर रहे हैं. 0 0 0 0, और I have skipped some value. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक तो है. एनीवेज मिल जाएगा. करते हैं 1 1 1 1 0 0 0 0. दिस इज सपोज टू बी 1 1. ओके ओके गॉट इट. हाँ ठीक है, ठीक है. ये चलते जाएगा क्योंकि बाकी भी तो वैल्यूज आएगा ना.
एनीवेज गॉट द कल्प्रिट। अब ठीक है। तो पहला में 1 0 1 1, दूसरा में 2 0 2 1, तीसरा में 4 0 4 1। एंड अभी तक आप जो प्रेडिक्ट कर चुके होंगे इसमें 8 0 8 1 होने वाला है। हम्म, ठीक है। सो दिस वाज द बाइनरी इक्विवेलेंट एंड ये उसका हो जाएगा, सॉरी दिस इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट एंड ये हो जाएगा उसका बाइनरी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट स्पेलिंग वगैरह को प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मेरा कीबोर्ड जब से चेंज हुआ है हम तब से परेशान है। बट एनीवे, सो दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस। तुम भैया जी हट जाओ, थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कर लेते हैं जब इतना टाइम दिए हैं तो। एंड वी आर गुड। नाउ गेटिंग बैक टू दिस, सो व्हेन वी आर सेइंग 97, एंड बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, यहाँ तक अज्यूम कर रहे हैं कि आपको आता होगा। ये क्या कर रहे हैं, इसको 4 4 बिट में इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये वाला है 7 एंड ये वाला है अगला वाला 9 के लिए हो जाएगा। ये बाइनरी से हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर बाई चांस इससे ये मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर ये आउटपुट गलत, इनपुट हम लोग गलत लिए हैं एंड वाइस वर्सा। सो जनरली ये सही होगा, जनरली यहाँ भी सही होगा, बट यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। ठीक है। अब अगर ये समझ आ गया है तो जॉर गेट का लॉजिक पता है, एस की कोड का लॉजिक हम लोग को बाइनरी वैल्यूज़, बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यूज़ और उसका एस की वैल्यू मिल चुका है। नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू, हम लोग को इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, राइट। सो लेट्स गेट टू द कोडिंग पार्ट, इनफ विद द थ्योरी, करते जाते हैं समझ आ जाएगा। लेट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट implement the coding part, implement the logic, and then we'll get back to this for a detailed dry run. Okay, so let's declare a variable name result, initialize it with 0. Let's start the loop and start reading each character of the loop. So let's say char c as the to char array, right. This is going to read the array. Now what we are going to do, we are going to implement the XOR gate from here. XOR gate or XOR gate, however you feel to pronounce it, as you wish. So the first loop will implement the XOR gate logic to char c from string s। ये याद, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिमिलरली सेकेंड स्ट्रिंग के लिए भी सेम चीज़ इंप्लीमेंट होगा, char c t dot to sorry char array, and this is going to be result XOR gate is equals to c, that's all, and our solution is done। बस यही करना था। now result को हम लोग को रिटर्न कर देना चाहिए, राइट, रिटर्न रिजल्ट, एंड दिस सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड परफेक्टली। क्या किए हैं, जॉर गेट का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं डुप्लीकेसी के लिए, क्योंकि ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करते जाएगा। सो अगर हम लोग बात करें स्ट्रिंग एस और स्ट्रिंग टी का, तो स्ट्रिंग टी इज़ मेड अप ऑफ completely from string s, so which gets us to the point that string t would having the characters from string s along with the one extra character जो कि यूज़र अपेंड किया है, एंड जो यूनिक कैरेक्टर होगा, यूनिक वैल्यू होगा, would be left in the form of result. So that's how it work। अगर हम लोग डिटेल्ड ड्राई रन का बात करें, जो अगर एग्जॉर गेट को इम्प्लीमेंट करना चाहें,
I don't know how many of you need it, but still for the sake of सबका समझ आने के लिए let's implement it the very high level result and characters, right? and output. इस केस में हमारा जो रिज़ल्ट है वो itself है, रिज़ल्ट ही है। क्यों रिज़ल्ट है? क्योंकि what we are actually doing over here is we are doing the we definitely know this is a shorthand, right? So ये कुछ ऐसा है, result is equals to result, ये either we write in this way or in that way, the point remains same. So what we are doing, we are implementing the XOR gate logic and then saving the result in the result variable. To begin with, we have initialized the result variable with 0, so यहाँ पर 0 आएगा। अच्छा, ए का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? ये है, ये है। तो अगर इसका रिज़ल्ट भी ज़ीरो आएगा, क्यों? क्योंकि ज़ीरो के साथ मतलब डिफरेंट इनपुट, तो आउटपुट क्या देगा? कुछ इस तरीक़ा से देने वाला है, नॉट एग्जैक्टली दिस वन, वी आर गोइंग टू गेट दिस, सॉरी माय बैड। ठीक है, ये देगा। अगर डिटेल्ड ड्राई रन देखना चाहते हैं तो व्हाट वी नीड टू गेट, आई मतलब डेफिनेटली अगर हम लोग इसको ड्राई रन पूरा करने गए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है, बट फॉर द सेक ऑफ एवरीबडीज इंक्लूजन थोड़ा सा एक पार्ट हम लोग करते हैं। तो जब पहला स्टेप में आए तो रिज़ल्ट में हम लोग को ये मिला, तो ये मेरा रिज़ल्ट है। अब अगला बार हमको क्या मिलेगा? अगर ये मेरा स्ट्रिंग है दिस वन ए बी सी डी, तो नेक्स्ट बार हमको क्या मिलने वाला है? बी मिलने वाला है। द बाइनरी इक्विवेलेंट, द ASCII वैल्यू ऑफ बी इज़ 98, एंड व्हेन वी से द ASCII वैल्यू ऑफ बी इज़ 98, देन द बाइनरी इक्विवेलेंट जो इसका है वो ये है। सो वी आर गोइंग टू पुट इट आउट ओवर हियर, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो हम लोग को कुछ इस तरीक़ा से मिलेगा। it is going to be let's solve it. So what do we have in the ये वाला पार्ट? एक कर लेते हैं, बाकी को स्किप कर देंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट डेफिनेटली यू कैन कम बैक टू मी एंड कमेंट इफ देर इज़ एनी काइंड ऑफ थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन रहा है तो डेफिनेटली वी कैन डिस्कस इट। सो क्या कह रहे थे हम लोग? ये ज़ीरो है एंड यहाँ पर है 0 1 1 0 0 0, 4 ज़ीरो है एंड एक 1 है, सही है ना? 0 1 1 0 0 0 0 1 ज़ीरो, ओके ज़ीरो मिस हो गया है। ओके यहाँ पर ये उठा ही नहीं रहा है, ये एक्सेल का इशू है। लेट्स राइट इट इन दिस फॉर्म। क्यों नहीं उठाएगा? 0 1 1 0 0 0 एंड 1, राइट, ये सही है। 0 0 0 0 0। क्यों ज़ीरो? क्योंकि ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में रिज़ल्ट को हम लोग ज़ीरो से इनिशियलाइज किए थे। सो दिस इज़ रिज़ल्ट, this is result, this is input A and this is going to be the result. Now we know अगर हम लोग ज़ीरो को मतलब दो डिफरेंट इनपुट देंगे तो आउटपुट वन आएगा, सेम इनपुट देंगे तो आउटपुट ज़ीरो आएगा। इस केस में सेम इनपुट है, आउटपुट ज़ीरो, इस केस में डिफरेंट इनपुट है, आउटपुट वन, इस केस में डिफरेंट इनपुट है, आउटपुट वन, इस केस में सेम इनपुट है, आउटपुट ज़ीरो, सेम इनपुट, आउटपुट ज़ीरो, सेम इनपुट, आउटपुट ज़ीरो, same input, output 0, different input, output 1. So we can see the value which we got over here is कुछ इस तरीका से है 0 1 1 then 4 0 1, okay. So ये मेरा पहला स्टेप का आउटपुट आ गया कुछ इस तरीका से। नाउ ये रिज़ल्ट को लेंगे, इसके पास जाएंगे। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर लिख लेते हैं v का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, जस्ट टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग। ये जो ज़ीरो स्किप कर रहा ना, ये अच्छा नहीं कर रहा है। मतलब इफ़ आई was required to remove the zero I would have done it, but anyways ये मदद करना चाह रहा है हम लोग का। anyways so this is our result, right?
Let's highlight it. Now let's write for b. तो b के लिए क्या होगा? b का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है हम लोग बोल रहे थे? यहाँ कहीं पर देखे थे, राइट? इट वाज ओके 011 ट्रिपल 010 011 ट्रिपल 011। सही है, सही है। नाउ खुद सोचिए, सेम लॉजिक जो पहले इम्प्लीमेंट किए थे हम लोग। सो 0 0 सेम इनपुट, आउटपुट वुड बी 0। 1 1 same input, output would be 0। 1 1 same input, output would be 0। Then 0 0 same input, output would be 0 0 0 1 0। So 1 2 3 4 5, something like this। 1 2 3 4 5 6 1 0 1 0। कुछ मिस नहीं कर रहे ना बाई चांस? अगर ये सही है और हम लोग ये सही डाले हैं, 0 1 1 ट्रिपल 0 10 ट्रिपल 0 1। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। बी के लिए तो ये है ना, 0 1 1 ट्रिपल 0 10 0 1 1 ट्रिपल 0 10। माई बैड, सॉरी। ये बी का है। सो इसको अगर हम रिज़ल्ट दिखाना चाहें तो सेम आउटपुट ज़ीरो देगा, सेम आउटपुट ज़ीरो देगा, सेम इनपुट सॉरी ज़ीरो देगा, सेम इनपुट ज़ीरो देगा, ज़ीरो देगा, ज़ीरो देगा, वन देगा एंड वन देगा। This is correct, right? Definitely. So we are going to get 6 zeros appended with 1 1. Fine. So if we do summation of this one with b, इसको हटा देते हैं, तो we are going to get 0 0 0 0 0 0 1 1। सिमिलर वे में a b c d पूरा करेंगे एंड सिमिलरली जब सेकेंड बार लूप चलेगा, दैट इज दिस वन। सो वो एक एक करके सारा वैल्यूज़ को रिवर्स करते जाएगा एंड फाइनल वैल्यू जो बचेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द binary equivalent of that particular character, and then for that particular character is going to be converted back to the ASCII कोड से उसका हम लोग को एग्जैक्ट करेक्टर मिल जाएगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी, दैट इज़ इसी तरीक़ा से हम लोग इसको पिक करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल। Now since we have said that we would be discussing all the remaining answer, पहले इसको चला लेते हैं और चेक करते हैं कि मेरा सॉल्यूशन सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। एक बार रन कर जाता है, then we would be quickly having the remaining solution as well। So compilation error, return result, why? Let's check it out। RETURN स्पेलिंग सही है। Okay, yeah, sorry, care। Sorry, we are returning actually a character value, right? Then it is supposed to be okay. The solution is accepted. Now let's submit it for the XOR gate solution। Okay, beats 100%, that is good, and for memory beats 9.3%। okay, तो ये था मेरा पहला सॉल्यूशन। अगर सिमिलरली बात करें सेकेंड अप्रोच का, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स कमेंट इट आउट। I would be keeping the solution in a separate file, PDF file, and then would be putting the value in the description. So no issue with respect to the code. Let's remove this for now, we don't need it।
So getting back to the second approach which we were discussing, right? That is the traditional array summation and method. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगला अप्रोच जो है, लेट्स से इंट सम एस सम टी, ये दोनों को ज़ीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं. ओके, वी आर नॉट इन पाइथन, वी आर इन जावा. अच्छा ठीक है. तो सम एस सम टी, दो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लिए हैं. लूप चलाते हैं, कैर सी कोलन एस टू कैर अरे, स्पेलिंग गलत लग रहा है अरे का. हाँ, तो वी आर एक्चुअली बिल्डिंग अ स्ट्रिंग, ये वाला बनाए हम लोग. ठीक है. सम एस में क्या रखा हुआ है, सारा वैल्यूज़ हम लोग सम करके रखनी है. सम करके क्या रखनी है, डेफिनेटली इसका एस की वैल्यूज़ पिकअप होने वाला है, राइट. ओके. देन अगला वैल्यू जो हम लोग करने वाले हैं, सिमिलरली कैर सी कोलन टी डॉट टू कैर एरे, बिल्कुल अप्रोच एग्जैक्टली सेम रहने वाला है. सम टी इज इक्वल्स टू सम टी प्लस सी, और वी कुड हैव डायरेक्टली रिटर्न समथिंग लाइक, यहाँ पे हम लोग प्लस लगा दिए होते और ये हो गया होता. ये इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होगा. सो दैट्स ऑल, ये हो गया. एंड ये लूप लगेगा, इस लूप से बाहर निकलना है. ये कहाँ, ये फॉर लूप है. और यहाँ पर आते हैं, हम लोग लिखेंगे रिटर्न सम टी प्लस सम एस, राइट. डेफिनेटली नॉट, हम लोग को क्या चाहिए, वो यूनिक कैरेक्टर चाहिए जो दोनों में प्रेजेंट नहीं है, राइट. सो वी वुड बी एक्चुअली डूइंग द माइनस पार्ट, t minus s. Why t minus s? Because t is having the one character extra which is not present in s. So by default the t is bada string as compared to string s, which is the chota one. Now definitely we don't need the uh, integer value for this, right. So we would be typecasting this in a character value. So in that case, अगर हमारा जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर होगा जो s में प्रेजेंट नहीं है बट t में है, वी कैन गेट इट फ्रॉम हियर. सो दैट वाज द सॉल्यूशन. लेट्स रन इट. Compilation error, semicolon was missing, we have added it now. Let's hope this works. Yeah, this worked. Let's submit it. Solution is accepted. Similar runtime beats 100% with respect to this, and for memory it is beating about 9.32%.